convenient for me. How many students have joined till now? Let me take the attendance for that. अब यहाँ पर we have already done कि if we have to print the things in the same format, तो हमने यहाँ पर in this way we can print the thing. When we will execute it, first it will allow us to save the things and then we can. अब यहाँ पर 5 9 था because that was my mistake because I have not used this thing /n. I've used two symbols simultaneously. /n is used to create a new line. So whatsoever we have written after that /n, so it will go in the next line. तो आपका उससे पहले ही था. अब suppose इसमें question है कि that we have to modify the above code. So there are so many ways to write the same thing. We already discussed. Either you can print the things in the 5 and then we already discussed. I am not discussing it again and again. We'll discuss at that times other options. In this way we can also write our code. In this way we can also write the code. Now the question is how we can modify the above program so that we can print the output as in this way. तो when because after each and everything there is a option. तो हमारे पास option है कि if I have to print something in between all the symbols, so then there is a one option कि either I can print the simple way, I can print in this way also, but this is not the question demands that we have to write the code in this way. This way, the second class students also write in this way also. So now another way to write the same thing, either we can write 5 10 9 and then we can use the same one symbol which is the separator. Separator is the part of the print function and this is the parameter. The same way we are using the end function, the same way हम separator भी use करते हैं. Separator का use क्या है? If we want to put some values in between the जो भी हमने multiple words लिए हैं, तो उसमें अगर हमने if we want to put some symbol, then we can use the symbol by using the separator. So let's execute it. Now you can see it's showing this thing. I am just making this thing in the commented form. Clear है? अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है. मैम बोलो. अदरवाइज सिंबल्स डाल नहीं पाते हम. अदरवाइज आपका चीजें जैसे सपोज ये वाला क्वेश्चन है, हम इस पे करते हैं. क्वेश्चन था, अब सेपरेटर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि माय नेम इज जेम्स है. अब इसमें आपको ये चीजें आकर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए. आफ्टर माई दो सिंबल शो करें नेम के बाद, फिर दो एस्ट्रिक सिंबल यूज करें, फिर इसके बाद इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन होना चाहिए. तो आपके पास देन पुट ऑल द थिंग्स, यानी ये सारी वैल्यूज हैं और इन सारी वैल्यूज को आप इस फॉर्म में स्टोर करो. सेपरेटर सिंबल किस लिए यूज होता है? आपका मल्टीपल वैल्यूज हैं उसके लिए. तो हम मल्टीपल वैल्यूज में इफ आई वांट टू पुट सम सिंबल, तो सेपरेटर क्या करता है? वो चीज़ को सेपरेट करता है. वो कंप्यूटर में हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, तो उसी से रिलेटेड कि हर यहाँ पर जो हमने सेपरेटर में जो सिंबल लगाया और जितने भी मैंने वर्ड्स और सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं जो सेपरेट कर रहे हैं कॉमा से, उन सब के बीच में इट विल ऐड दिस सिंबल. तो हम चेक करते हैं. तो ये वाली चीज़ आपकी इस फॉर्म में शो करता है. लेट मी मूव टू दिस साइड. यहाँ तक समझ आया? ये सेपरेटर का यूज है. जब मैं एंड को यूज करती हूँ, एंड का सिंबल क्या होता है? व्हाट्सोएवर वी आर राइटिंग. आपको कल भी बताया था कि व्हेन यू हैव टू सेपरेट वन थिंग विद द अदर, तो आपको यू हैव टू यूज द कॉमा. तो कॉमा क्या करता है? एक चीज़ को दूसरे से सेपरेट कर देता है. पर when we are separating with the comma, if we want to join something with the some symbols, then we can use the separator. This is a keyword that we are using with the print function. We already discussed this thing कि there are two parameters that we are using with the print function. One is the separator
and other is the keyword. And these two keywords we are using in the print function. The use of end parameter is then whatsoever we are writing in the next line it will goes in the same line. और separator का use क्या होता है? If we have to add some symbol between the multiple words then we can use the separator. तो मैम जैसे मैंने आई विल राइट प्रिंट 5, उसके बाद अगले लाइन में आई विल राइट प्रिंट @10 और उसके आगे मैंने एंड लगा दिया तो भी चलेगा ना? हाँ वो कर सकते हैं पर वी आर एक्सपेक्टिंग अब नेक्स्ट टाइम जब हम आगे फॉर लूप करेंगे कंडीशंस करेंगे और अगर इफ यू विल राइट द होल कोड इन दिस वे बाय यूजिंग ओनली द प्रिंट स्टेटमेंट एंड व्हाट्स द यूज टू लर्न अदर कॉन्सेप्ट फॉर दैट. तो नॉर्मली वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप एक एज ए प्रोग्रामर हो तो ईच एंड एवरी टाइम आप अपनी चीज़ों को जब आप लिख रहे हो तो उसमें यू हैव टू ऐड समथिंग जो आपने आगे पढ़ा है. आप लिख सकते हो. देर आर सो मेनी वेज ऑल्सो. जैसे अभी तनिष्का ने बताया, कैसे बताया था, 5 लिखा और फिर उसके बाद यहाँ पर उसने @ यहाँ पर सिंबल लगाया एंड देन इन द यहाँ पर उसने ये टोल्ड मी कि मैंने यहाँ पर एंड यूज किया सो दैट व्हाटसोएवर वी आर राइटिंग इन द नेक्स्ट लाइन यहाँ पर इस इट विल गोज इन द सेम लाइन. तो आप ऐसे भी कर सकते हो. और 9 के बाद भी कुछ सिंबल है नहीं तो जस्ट स्ट्रेट अवे जस्ट टाइप द थिंग्स. अगर आपने 9 के बाद भी प्रिंट करना है देन यू कैन. अदरवाइज आपका एंड इसके बाद कुछ नहीं है तो नो नीड टू स्पेसिफाई द एंड फॉर दैट. तो इट विल शो द थिंग्स इन द सेम वे ऑल्सो. ऐसे भी कर सकते हो जिसमें आपका एंड का यूज हो रहा है. एंड का यहाँ पर आई एम जस्ट मेकिंग दिस लाइन कमेंटेड फॉर्म. तो आप यहाँ पर इस फॉर्म में भी हो सकता है. तो इफ़ यू नो द अदर ऑप्शंस कि आपको पता है कि इन दिस वे वी कैन ऑल्सो यूज द थिंग, इन दिस वे वी कैन ऑल्सो राइट द थिंग्स, देन यू कैन एक्सपेरिमेंट दोज थिंग्स. पर ये मेरे अकॉर्डिंग एक वन मेथड था. जैसे अभी तनिष्का ने यहाँ पर दूसरा मेथड किया, मैंने सिंपल एक यही मेथड आपको बताया था. तो यू कैन यूज अदर मेथड ऑल्सो. और अगर इफ योर प्रोग्राम इज गेटिंग द सेम आउटपुट तो यू कैन यूज दैट थिंग ऑल्सो. क्लियर है? पर हर बार नहीं होता. आगे हम करेंगे तो देन आई विल टेल यू कि व्हाट यू. मैम वो माय नेम इज जेम्स में मैम वो मतलब डबल कोट्स में नहीं आया आउटपुट. क्या नहीं आया? मैम आउटपुट डबल कोट्स में नहीं आया. हाँ नहीं आएगा. किसने कहा कि आउटपुट डबल कोट्स में आएगा? मैम वो क्वेश्चन में है ना मतलब डबल कोट्स. नहीं ये मैंने लिखा है. दिस आई हैव रिटन. अगर आपको चाहिए देन यू कैन राइट द थिंग्स. यहाँ पर ये देखो प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करो. प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ एग्जीक्यूट करो और जस्ट यहाँ पर ये भी ये नहीं आता है. ये चीज़ों को कब आता है? ये तो मैंने लिखने के लिए रखा था. माई नेम से जेम थोड़ी ना है. अगर मैं ये नहीं लिखूंगी तो आपको पता क्या चलेगा? व्हेन वी हैव टू हाईलाइट समथिंग इन द टेक्स्ट पार्ट तो क्वेश्चन में आपको लिखने के लिए दैट इज वाई आई पुट द कोट्स, ताकि आपको पता चले कि ये वाली चीज़ को यू हैव टू राइट इन दिस वे. दैट डजंट मीन कि आपको वो कोट्स में डालनी है. इट मीन्स दिस इज अ स्ट्रिंग पार्ट दैट यू हैव टू चेंज the your value is this and after the statement your value will become ये changed in this way. तो आप इसमें भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. यू कैन यूज द एंड सिंबल ऑल्सो बाय यूजिंग माई के बाद भी यू कैन पुट दीज टू सिंबल्स एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट और यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स इन द प्रिंट स्टेटमेंट. दिस इज द बेस्ट थिंग. बच्चों को और समझ नहीं आता तो दे आर राइटिंग द एंटायर थिंग इन द प्रिंट स्टेटमेंट. वो कह देते हैं मैम देखो मेरा तो क्वेश्चन माई question is also giving the same output to me. You can use in this way also, your choice. But what you have learned कि आपने स्टार्टिंग पे अभी वहीं पर ये हैं कि whatsoever learned क्यों बेटर है चीज़ों को सेपरेट. जितनी बार हम आप यूज़ करोगे आपको खुद को वो चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स फिक्स हो जाएंगे. तो देन यू डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू लर्न ऑल दोस थिंग्स. एनीवे ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज आई एम गेटिंग द सेम आउटपुट ऑल्सो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं इनपुट वगैरह पे. अब हमने वी हैव डन कैलकुलेट परसेंटेज. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है.
I'm making all these things in the commented form so that we can execute. Question is that we have to write a code and assign Smith to first name and Blake to the last name and display full name in the single line. तो उसमें कहा है कि that we have to display we have to assign the first name. You can specify F name or you can specify first name or you can give any name F, your choice, because this is your program. You can give any name to your specified F Smith to first name and Blake to last name. Last name I am specified Blake to last name, and when I'll print display the full name in the single line, so I can display the things F plus. If you want to put some space between both the things, first we will execute it, because when we will combine both the things, it will display nothing. There is no space between these two things. Then we will follow the same thing, that plus symbol or operator is used to combine the string value. When we are using the plus symbol with the string, it will combine it, or when we are using plus symbol with numbers, it will calculate the things. तो अब यहाँ पर because we have put the space between both the name, यहाँ पर you can see. So this way also we can combine the things in one way also. अगर आपने this you don't want to write the things in this way, because इसमें लिखा हुआ है कि first name को हमने Smith ही देना है, then you have to use the variable concept. अब next है कि display the code that takes the first name and surname from the user and display them together. तो यहाँ पर we have to, because in this question the value is specified to you, but in this question we have to take the value from the user side. So for that, if we have to take something from the user, then we have to use the input function, because here input function by default what it takes the value in the form of string. Then enter first name, last name में input. There is only one function which takes the value from the user, last name, and display them together. We can use the same thing here also, because in the previous question value is already specified to you. Here we are taking the value from the user. That means user according to his or her own choice will specify the value. Enter first name. Suppose I am using Smita Thakur. So you are getting the things. So each and every time. Then please note down all these questions in your register. Go and bring your register so that you can note down the things. Hurry up. Because if you will not note down anything in your register later on, मैम ये क्वेश्चन नोट डाउन करवा रहे हो आप? हाँ, question with answer also. ठीक मैम. Just removing the comments of all the codes so that it will be easier for you to understand. सिंगल लाइन कमेंट में आपका क्वेश्चन है और आपका हाईलाइटेड वाला आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन. मैम एंड वाला स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर नेम लिख रहे हैं हम, तो नेम में आपका इंट यूज नहीं होता. इंट के लिए अलग क्वेश्चन होते हैं. नो मैम एंड बोल रहा हूँ. एंड END. अच्छा, एंड कहते हैं बेटा उसको.
एंड का आप यूज़ कर सकते हो। एंड का कहाँ पर यूज़ करना है, जहाँ पे भी आपको नेक्स्ट लाइन की चीज़ों को सेम लाइन में चाहिए होता है तब हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं। ये दूसरा मेथड है। प्रोग्रामिंग में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप अपनी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और उसमें कोई एक फिक्स्ड वे नहीं है कि आपको उसको उसी वे से लिखना है। देयर आर अदर वेज ऑल्सो, तो बस आपने वो अदर वे ही ढूंढना है कि कुछ और हो सकता है। इज़ देयर एनी अदर वे, इज़ देयर एनी अदर वे, तो आपने बस वही चीज़ों को देखना है। और हर बार मैं कमेंट यूज़ करती हूँ, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, इसीलिए ताकि आप उससे फेमिलराइज हो जाओ कि हाँ ये भी है, इसका मतलब एक लाइन को कर रहे हैं, इसका मतलब हम 2 लाइन्स को कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, राइट अ कोड दैट जनरेट्स द फॉलोइंग आउटपुट। आई एम जस्ट मैक्सिमाइजिंग द थिंग्स। 5, 10, 9, modify the above program so as to print output as 5 at the rate. There are other ways also. तो हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने भी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बेटा। मैम आपने उस दिन वो एरिया ऑफ सर्कल वाला करवाया था ना,